Good evening to all, respected management, honorable principal, respected guest of the program, panel members, parents, teachers, students, and dear YouTubers. I, Arpana Gavande, welcome you all in this virtual program of Sanskar Jnanpit, known as Sanskar Durga, one step ahead, strengthening to strengthen. It's our sixth episode today. We are going to meet our sixth Sanskar Durga from Khamgaon. Before we go ahead, I would like to request respected principal sir to make us know more about this program. Namaste, good evening. Very first, I would like to greet Mrs. Namrata Rathi ma'am. She is our sixth Durga today in this program. The objective behind the program, we knew that the women, those who empowered themselves, as well they are contributing to serve nation directly, indirectly, and they are influencing other lives. So it's my really privilege to welcome her today, and she will surely stand as an example. She will set some messages in the society we shall have through the discussions today. We have with us panel members, Mrs. Seema Kumne, Ms. Rupa Singh, and Arpana Gavande. I'm so happy the honorable management, the chairman of this institution, Sri Sagarji Phunkar sir, Vice Chairman, the standing MLA of Khamgaon, Advocate Sri Akashji Phunkar sir, and my beloved director, Sri Amitji Kirtane sir, always support us for such creative, innovative program. Sanskar Jnanpit always believes in experiential learning. As I stated before, nowadays there are the books of life skills, but we are really missing some skills in actual life. We have such Durgas, and we want to celebrate this Navratri with a great difference. So today I welcome Mrs. Rathi here as the sixth Durga in our sixth episode. So over to panel members. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Yes, now we all are eager to know about our sixth Sanskar Durga, Madam Namrata Rathi. To know more about her, I would like to introduce you, Namrata Rathi Madam. Namrata Rathi ma'am. Her full name is Namrata Basant Rathi. Madam has completed her education from science field. She has completed her MCA, BEd also. और आप अभी GS कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं. Madam believes in helping needy people. She wants to serve the society in a different way. And she is honored also for this work. You can see in this picture. What is this different way? Actually, today we people are not satisfied having a number of things. And we don't means we want to have more and more. We don't want to share it with anyone. But Madam has set herself as an example in a different way that she wants to share whatever she has, and for that purpose she inspires others, she motivates others to be a part of all these things. Even at the same time, she gives free education to needy one. She runs like coaching classes to provide education or
to make education available for the poor children for whom tuitions are not at all affordable. You can see that Madam has been awarded in different ways due to her this social work. Even in this picture also you can see एक बहू को समाज कार्य करने के कारण बहुत अच्छे तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, and she has proved it that a woman, a Durga, if she decides, she can do anything. And really, as her work is a unique one, or we can say that towards humanity, so she got success in that, and I hope or I pray to God that she would get success ahead, and she would go move ahead and ahead. So today we have here Mrs. Namrata Rathi ma'am with us. So to proceed for the program, I would like to give the charge to Rupa ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम मैम। मैम सबसे पहले तो अभी जो हमने स्लाइड्स देखी उसमें देखा गया है कि हमारी जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा ताई पाटिल, उनके हाथों से आपको अवार्ड मिल रहा है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताइए किस चीज़ के लिए है, किस कार्य के लिए आपको मिला है। मेरा कंप्यूटर साइंस सेक्टर है और 2008 में जो इंडिया से 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना था उस समय वर्क फ्लो मैनेजमेंट के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर हम तीनों ने मिलके बनाया था और आज वो सॉफ्टवेयर ऑल ओवर सभी जगह वही सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है जो इनिशियलाइज हमने किया था, और उसमें चेंजेस करते करते अब आगे वो प्रोसेस हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट अप्लाई किया था वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया था उसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट मैम। थैंक यू मैम मैं आगे पूछना चाहूँगी, बिफोर डूइंग एमसीए एनी थॉट ऑफ डूइंग चूजिंग सम डिफरेंट कैरियर और डायरेक्टली यू थॉट टू डू एमसीए ओनली? एक्चुअली ऐसा है मैडम कि मैंने बचपन से ऐसा देखा है कि लाइफ में स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। जैसे एमसीए करने को हम लोग हॉस्टल में रहे, तो हॉस्टल में रहने के बाद अच्छा नहीं लगता ऐसा कि अपन घर वालों से पैसे मंगा रहे हैं, क्योंकि अपन एमसीए होने के बाद जब अपन एमसीए हो रहे हैं तो बैचलरेट तो कंप्लीट है ना, तो बैचलरेट कंप्लीट रहने के बाद एटलीस्ट आप ट्यूशन्स ले सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसा कहीं जॉब करना हो गया या किसी को कुछ वर्क करके देना हो गया, कंप्यूटर का टाइपिंग हो गया, कोई शेड्यूलिंग बना के देना हो गया, किसी को कोचिंग देना हो गया, किसी को पेपर शेड्यूल करके देना है, तो ये जो है ये चीज़ें अपन कर सकते हैं और उससे इनकम कर सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ ना कुछ करना समाज के लिए जिसकी वजह से सामने वाले को उसकी चीज़ तो हो जाए। जैसे आज अगर मैं कोई प्रोफेशनल के पास जा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करके दीजिए और इंडेंटेशन वगैरह प्रॉपर चाहिए, तो वो उसका एक रेट फिक्स रहेगा कि मैं ये रेट में कर रही हूँ। लेकिन वही अपन स्टूडेंट क्लास में जाएंगे, उनको वो सब कुछ करते आता है लेकिन उनके पास बिना ब्रांड के है, सिर्फ करेक्शन जरूर करना पड़ेगा लेकिन वो ब्रांड चलने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हारे पास जरूर रहेगा। और इससे क्या मोटिवेशन मिलेगा कि कोई ना कोई काम करने के लिए आगे आते जाएगा। अर्न विथ लर्न ये सबसे अच्छी जो कंसेप्ट है जिससे पैसे का महत्व उसी समय समझना शुरू हो जाता है। आज क्या हो जाता है कि आज अपन मांगते हैं तो तुरंत पेरेंट्स अपने समय ऐसा नहीं था कि तुरंत पेरेंट्स आज बोल रहे हैं ना आज का आज डिनर है आपको चलो दिला देते, आपको वेट करना पड़ता था। और पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे ना तो कोई चीज सिंगल नहीं आती थी कि एक चीज बोले और एक चीज घर पे आ गई। आज कैसा है, अगर मुझे कोई चीज खाना है और मैंने बोला कि आज चाहिए मुझे तो तुरंत आ जाता है, लेकिन जॉइंट फैमिली में आते समय वो 20 जनों के लिए लानी पड़ती थी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड जरूर जाता था, तो उससे पेशेंस बढ़ते थे और वो पेशेंस बढ़ने के कारण बहुत सी बार तो ऐसा भी होता था कि वो पेशेंस बढ़ते बढ़ते वो चीज, जैसा फॉर एग्जांपल मुझे अगर शेगाव कचौरी खाना है तो उसकी शायद इच्छा खत्म भी हो जाए कि मुझे नहीं खाना है अब, कि उसमें पेशेंस बढ़ गए ना वो चीज के लिए कि उसमें रुकने की भाव आ गए
अब फिर ऐसा हो जाता है कि जिसको समझो अपन ने पापा को मांगा तो पापा की बजाय चाचा ही पहले लेके आ गए, माने उनको शेयरिंग की भी वो जो है वो वहां से शुरू होता है। और आज कैसा है, जैसा ऑटोमिक फैमिली में रहते या फिर सिंगल फैमिली में रहते तो उसमें क्या है, शेयरिंग का कोई काम ही नहीं है, हर चीज तुम्हारे लिए ही लाई जा रही है, हर चीज तुम्हारी है, उसमें शेयरिंग का नहीं है। पहले एक हॉल में 10 जन सोते थे लाइन से, आज बच्चों का रूम अलग, दादा दादी का रूम अलग, रहने के बावजूद भी हर एक को सेपरेशन चाहिए। मैंने साथ में भी रहने के बाद तुम अलग अलग रह रहे, क्या फायदा है। घर में पहले आपको भी जैसे सभी को पता है कि एक मेनू बनता था और वो सब खाते थे, उसमें तब अपनी चॉइस पूछी जाती थी क्या कि क्या बनाना है, कोई नहीं पूछा जाता था। घर में जो बड़ा मेंबर रहता था वो जो बोला जाता था वो बनता था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारे पेशेंस है वो खत्म होते जा रहे हैं। आज सिंपल सा एग्जाम्पल, क्रेयॉन कलर्स आते 5 रुपए के है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कोई भी नर्सरी से लेके तो बड़े बच्चों तक के कोई भी वो क्रेयॉन कलर्स पूरे नहीं यूज करते, क्योंकि 5 रुपए का तो आता है, दूसरा ले आएंगे। अरे दूसरा क्यों लाएंगे, दूसरा ला, वो 5 रुपए यूटिलाइज हुए क्या पूरे, 5 रुपए का नहीं इम्पोर्टेंस, वो चीज यूटिलाइजेशन का इम्पोर्टेंस है। वो चीज जब यूटिलाइज हो रही है तो वो प्रॉपरली यूज हुई। जैसे कोई कपड़ा पहले फट जाता था, पहले समझो घर में मम्मी है, मम्मी के बाद में चाची है, चाची के बाद में बुआ है, बुआ के बाद में बच्चे हैं, इनमें हर चीज जैसे कपड़े हैं यूज करते आते थे। अब कैसा है, हर कपड़ा शॉपिंग करके शॉप में से लाते, छोटा हो गया डाल देते। पहले ऐसा नहीं होता था, एक जीन्स की पैंट अगर है तो वो एक जन यूज करता, उससे फॉरवर्ड होता था, फॉरवर्ड, जब तक वो कपड़ा फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता था तब तक कि वो यूज किया जाता। भले ही पैसे वाले के घर में, ये नहीं बोल रही मैं कि मिडिल क्लास फैमिली है या अपर क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली, सभी के घरों में ये होता था। और आज के तारीख में क्या होता है, माने किसी का है यही सुन के अपने को लेने का नहीं रहता। बड़े भाई की साइकिल छोटा भाई यूज करता था और वो आगे संभाली जाती थी कि चाचा का बच्चा है, वो बड़ा होएगा तो उसको भी दिया जाएगा वो चीज। तो ये अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है हर एक को नवी चीज चाहिए, एज पर डिमांड वो पूरी होती है, तो उसमें पेशेंस कम कम होते जा रहे हैं। और जैसे आज भी कि कपड़ों के बारे में हो गया, या ये मेरे चॉइस का है, मुझे चॉइस का नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा, पहले ऐसा कोई नहीं बोल सकता था। वो एटलीस्ट नहीं पसंद आया तो उसमें कुछ तो करेक्शन करके, जैसा आपको चाहिए थोड़ा बहुत करके वो पहने थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नहीं पसंद आया तो वो नहीं पहनते। तो फिर वो क्या होता है ना, ऐसा जमा करते 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 घर में एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि घर में गार्बेज में हर चीज अपने को भंगार वाले को देने की इच्छा है कि जो भी उठा ये यूज नहीं आ रहा है, दे दो भंगार वाले। अपन ने कभी ऐसा सोचना कि प्रैक्टिकली मैं बोलती हूँ मैडम कि कई एरियाज ऐसे हैं कि जिसमें छोटी पेंसिल माने उंगली से भी छोटी पेंसिल बच्चे पेन का कैप लगा के यूज करते। अगर वो हाथ में नहीं भी पकड़ी जाती ना तो पेन का कैप लगाते और उसको यूज करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको सच्ची मायने में उसका महत्व समझ में आता है। कपड़ों में उनके इतने छेद होते, जब मैं वहां जाती हूँ ना तो मालूम पड़ता है कि सच्ची क्या दुनिया में चल रहा है, ये कहाँ है। और सच्ची ये जो खर्चा हो रहा है तो सही मायने में जो हो रहा है वो यही है। और किसी को अब कोई भी बच्चा है नोटबुक पूरी यूज नहीं करता, एटलीस्ट 2 पन्ने तो 100% हर नोटबुक के वेस्ट जाते। तो अपन ने आज ही उनको बोलना कि उसके कोरे पन्ने फाड़ ले, रफ वर्क कर ले, या जहां जहां गैप छूटा है मार्जिन भी छूटती। देखो सबसे मेन चीज, तुम पोल्यूशन के भी उतना खिलाफ जा रहे हो, तुम एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हो, हर चीज में फायदा हो रहा है, पैसे से भी तुम सपोर्ट कर रहे हो, कोई गरीब बच्चों को तुम वो चीज के लिए हेल्प करते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कोरे पन्ने फाड़ लेते हैं। और किसी को भी क्या करते, शर्म आती है कि मैडम के यहाँ ले जाके क्या देंगे, तो आप मत बोलो ना आपका नाम, आप कहाँ रहते बोलो, आदमी आएगा आपका मटेरियल लेके जाएगा। उसमें से 40 पन्ने भी आते तो उसकी अपन बाइंडिंग करके एक नोटबुक बना लेते,
वो बच्चों को साल भर पढ़ती है वो 40 पन्ने की नोटबुक, और वो यूटिलाइज इतना अच्छे से करते हैं कि वो मार्जिन से लिखना शुरू करते तो आखिरी लाइन तक लिखते हैं। जो पीछे की साइड अपन बोलते हैं कि पीछे की साइड नोटबुक की कोरी छूट जाती है या अच्छे से नहीं लिखे जाता वहाँ, या छोटे बच्चे ड्राइंग करते तो बड़ी बड़ी ड्राइंग निकालते तो वो ड्राइंग के पन्ने आधे आधे छूट जाते, ये सब यूटिलाइज होता है। और ये खेड़े के बच्चों को जो चीज नहीं मिलती तो उनको वो चीज का इतना इम्पोर्टेंस रहता है। क्रेयॉन्स के लिए तो अच्छा, गेम्स, छोटे छोटे गेम्स, एक पार्ट घूम गया बच्चे डाल देते, वही गेम में से वो नई क्रिएटिविटी तैयार करते, जो जहाँ अपन स्लम क्लास में वो देते, वही बच्चे वहां से वो यूटिलिटी कुछ ना कुछ नवी निकालते। जैसे ब्लॉक्स के गेम है, उसमें के कुछ ब्लॉक्स गम गए तो वो यूटिलाइज करते वो चीज को भी। अब साड़ियां हैं, साड़ियों से वो लोग उनको पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, ठंडी में उनके आंग पे स्वेटर्स नहीं रहते तो यही कपड़े जोड़ जोड़ के वो कपड़े बनाते। जब अपन वहां प्रैक्टिकली जाते तब अपने को मालूम पड़ता है कि नहीं, तो अपन क्या करते, पुरानी कपड़े ले लेते और जो ऐसे है कि वो जो बहुत ही फटे हुए हैं तो उनसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना, गोदड़ी बनाते, पतली गादी या ओढ़न, वो 150 रुपीज दे के वो बनवा लेते और ठंडी में वो देते। आप कितने भी ब्लैंकेट दो या कितने भी दो, तो नए से खरीद के देना चीज अलग है। और कुछ रिसाइकल अगर करना है, एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करना है, अपने को बाकी भी चीजों को सपोर्ट करना है, तो ये चीज बहुत बड़ी है। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपन नहीं चल रहा के चार्जर निकाला, डाल दिया, कभी अपन ने वो सोचा नहीं कि वो चार्जर के कॉर्ड से जो वायर है उससे भी वो लोग गाड़ियां बनाते हैं। उन्हें हर चीज छोटी छोटी यूटिलाइज होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो प्रॉपर हैंड्स में जाने को। कांच की छोटी छोटी हॉस्पिटल्स में जो कांच की शीशियां रहती, उसने एग्जीबिशन रखा था जीएस कॉलेज में, तब उसने वहां उसकी मंदिर बना के प्रेजेंट किया। यहीं पास के एक खेड़े का बच्चा है, और ऐसा करते करते अपने बच्चे भी इतने से सारे कपड़े निकलते। दिवाली में आप अगर ऐसा हर एक को बोलेंगे कि आपने जो 5 साल से जो साड़ी को हाथ नहीं लगाया वो साड़ी दिवाली पे निकाल देना, आधी अलमारी खाली हो जाएगी। 5 साल बोल रही मैं ये नहीं बोल रही कि ये 2 साल में, या ये 5 साल से जो साड़ी को आपने हाथ नहीं लगाया, या जो ड्रेस को हाथ नहीं लगाया, या जो दिवाली के सफाई में चीज निकली उसको आपने हाथ नहीं लगाया 5 साल में, तो 100% वो बाद में तो यूज ही नहीं होने वाली। तो वो 5 साल में आप निकाल दीजिए ना, तो उतना भी अगर आप निकाल के वो चीजें अगर डोनेट करते हैं, अपन ने स्पेशली डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है अपने पास वो रिसाइकल भी होगा, और जो हाथों को उसकी जरूरत है वो हाथों में वो पहुंच भी जाएगा। और सबसे मेन चीज, आज तक के मैंने कभी ये किसी को बताया नहीं, जो मेरे करीबी लोग थे उनको मैं खुद बोलती थी कि नोटबुक भेज दे, मैं उसमें से फाड़ लूंगी, मैं बाइंडिंग करा लूंगी, या मैं जो कोचिंग लेती वहाँ, या जिला परिषद की जो बच्चियां आती थी मेरे पास, वो बोलती थी मैडम हम ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं उनको बोलती थी जब तुम्हारा ऑफ पीरियड रहता ना तब आ जाया करो मेरे पास। तो वो बच्चियां आती थी, उनको नहीं, लिटरली आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब वो लड़कियां आती ना तो भागती दौड़ती कैसी, तो भी बस में बैठ बैठ के आती, उनका पीरियड का टाइम वो सब सब मैनेज करके अपने पास बैठती थी, फटाफट खाना खाती थी, और उनको 35 मिनट्स का ब्रेक रहता है खाना खाने के लिए। तो वो 35 मिनट्स के इसमें वो क्या करते थे, 5 मिनट चलते चलते, जिला परिषद से मेरा केला पोस्ट ऑफिस के पास घर है, तो वहां से चलते चलते खाना खाते खाते आते थे। और वहां यहाँ आके, क्योंकि सबसे मेन चीज है साइंस और मैथ्स वो लोगों को नहीं इतना फास्ट समझ में आता, तो स्पेशली साइंस और मैथ्स के लिए, बाकी चीजों में इतने होशियार थे वो बच्चे। तो उसमें से एक लड़की अभी एमपीएससी में सिलेक्ट हुई है, यही अटेम्प्ट में वो एमपीएससी में सिलेक्ट हुई है। एक्चुअली नाम इसलिए नहीं बताना चाहूंगी कि आखिर वो ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस जुड़ जाता। वो एक लड़की एमपीएससी में सिलेक्ट हुआ है उसका, और उसको सिर्फ मैथ और साइंस की वजह से एक बार फेल होना पड़ा 8th में,
और लगातार गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने वो अपने पास आई और अपन ने उसको फ्री एजुकेशन, कोई पैसे नहीं, कोई कोचिंग के ये नहीं, और वो ग्रास्पिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ऐसा नहीं कि लड़की बहुत होशियार थी लेकिन नहीं प्रॉपर कर पाती रही थी, तो अपन ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी। यानी ये किसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे के महत्व किसको है कि जो बच्चों को पैसे की कमी मालूम है क्या चीज है उसको। आप अगर मिडिल क्लास के भी बच्चों को बोलोगे ना फ्री ऑफ एजुकेशन देती है, आ तो मेरे पास कोई नहीं आता। अच्छा, आने के बाद भी उसको क्या महत्व रहता है, मैडम पैसे थोड़ी ले रही है अपने से, कभी भी गए कभी भी आए, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं रहता फिर उसको। तो ये लोअर क्लास मैंने ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज का महत्व नहीं, पर उनको हर चीज, मैडम पास खत्म हो जाएंगी तो मैं है ना कल नहीं आऊंगी, मैं परसों आऊंगी, यानी ये चीज को वो समझते थे। बोले संडे को आ सकते क्या, तो बोले मैडम बस वाले अलाउड नहीं करते संडे को, पास जो है वो संडे अलाउड नहीं रहता। बोले मैडम, मानी ये चीजें अपने को सीखने को मिलती कि इनको वो चीज का इम्पोर्टेंस है। यानी यहाँ से क्या 2.5 रुपए टिकट था उनको, तो तब 2.5 रुपए में भी आना अफोर्डेबल नहीं था उनको। तो बोले यार 2.5 आने के 2.5 जाने के हो जाएगा, नहीं बोले मैडम नहीं जमता। और वो यहाँ से जाने के बाद खेत में काम करते थे। मैंने एक एक एग्जांपल ऐसे है मैडम कि अपन बोल नहीं सकते। अपने यहाँ लंच बॉक्स, वाटर बैग्स, कंपास, ये इतने वेस्ट में जाते हैं। स्केल्स हो गई, ये अपन कभी सोचते नहीं ये चीजों के लिए। हर एक घर में अगर अपन दिवाली के सफाई में निकाले ना, तो कम से कम 40-50 चीजें तो 100% ऐसी निकलेंगी कि जो अपने बच्चे यूज नहीं करते, फिर भी अपन जमा करके रखते, न वो किसी को देते, न वो कहीं आगे फरोड़ते। कभी तो भी ऐसा समय आता कि भंगार वाला आया हुआ है, पसारा कम करना है, उठा उठा के अपन उसको दे देते। प्रैक्टिकली मैडम हम तो एक भंगार वाले को भी ऐसा कांटेक्ट कर चुके कि तू भंगार लाया कर, तो भंगार लाने के बाद में हमारे को जो लगता है कि हमारे काम का है, तो तू जो पैसे बोलेगा उसमें हम खरीद लेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं भी एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी ऐसा नहीं है हायर क्लास। जो मुझे देना है वो मैं पैसे के फॉर्म में नहीं देना चाहती। जो भी अपने को देना है वो टाइम के फॉर्म में दो, और किसी का ना किसी का यूटिलाइजेशन करके दो, कि एनवायरनमेंट को आप साथ दे रहे हैं, ये कुछ करके दो। पैसे के फॉर्म में देने के लिए तो बहुत पैसे वाले बैठे हैं, और खाना भी देना है तो आपके बचे हुए खाने में से दो। आप ऐसा मत करो कि आपका खाना आप गाय को लगा रहे या आपका खाना फेंक दे रहे हैं। वो तुरंत हाथों हाथ बना हुआ है ना, तुरंत बांट दो। ऐसा नहीं आज का कल, कल का परसों चल रहा है, जो है वो फटाफट बांट लो तो अच्छा है, अच्छे हाथ से जाएगा। और वो 100% अपन सोचते कि सुबह की सब्जी बची, अच्छी बची, शाम को खा लेंगे। ये मैंने स्पेशली बोलती हूँ कि लेडीज के लोग में मन में ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच रहता है कि शाम को बच गई ना तो शाम को खा लेंगे, और कहीं कोई कारणवश बाहर चलना जाना होता तो वो हो गया ना। मैडम इन इंग्लिश में एक पोएम है डीप इन द रेफ्रिजरेटर, तो उस वो भी इसी सेंट्रल आइडिया के आधार पर है। उसमें भी मतलब जो मम्मी होती है तो वो रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों रखती है, तो इसका एकदम मतलब वर्णन बहुत ही अच्छा किया है। मैडम इतने बारीकी से आप ये सोचती है, तो जब आप एमसीए कर रहे थे तो आपके मन में ये सब विचार आए कि बीएड जब आपने किया तो उसके बाद या फिर बीएड करने के समय आपके मन में ये विचार आए? हाँ मैडम, एक्चुअली एमसीए के समय तो सिर्फ हेल्प करने का मन में आया था, लेकिन पुणे है ना, विजय भटकर की कंपनी में मैंने 3 साल काम किया। तो जहाँ मैं काम करती थी ना, पाषाण रोड पे, तब रोड का काम चल रहा था। तो वहाँ है ना गिट्टी फोड़ने वाले बोलते हैं, वो गिट्टी फोड़ने वाले के बच्चे बैठते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारे टिफिन में आता था, मेज पे खाते थे टिफिन, जो बचता था वो उनको देते थे। तो वो इतने खुशी खुशी खाते थे। फिर एक बार ऐसे ही घर से आ रहे थे तो पुरानी किताबें वगैरह बची हुई थी, एमसीए के बाद में फिर पढ़ने का नहीं था, तो फिर जो किताबें बचे थे हम घर से लेके आए थे कि उनके बच्चों को देंगे। और वो रोड का काम चल रहा था तो काफी लंबा चलने वाला था, ब्रिज का वगैरह, तो वो बच्चों को दिए करे, फिर वहां बैठ के उनको सिखाना करना, ऐसे से शुरुआत करी। फिर वहां जितनी हेल्प हुई वैसे। और कोई भी कैसा करता है, अगर
मैं कुछ कर रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसा मीडिया में नहीं आना या लाइमलाइट में नहीं आना है, कुछ नहीं। या जैसा मुझे बोला गया है कि आपके कुछ फोटोग्राफ्स है क्या मैडम कहीं कुछ बांटते टाइम वगैरह, तो मैंने ये कभी नहीं किया। एंड इवन अभी भी मेरा यही कहना है कि भाई लाइमलाइट में आने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, या कोई संस्था को या कोई पक्ष को, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ ये प्रॉपर हाथ में चले जाए, ये प्रॉपर है। क्योंकि कहीं कुछ देना है, करना है, देना कुछ नहीं, और उसमें फोटो और बाकी चीजें, फिर कोई कैसा है कि इसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, वो मुझे वे बदल जाता है फिर उसका। मैडम जैसा आपके जो साथ और कौन से लोग हैं मिस? जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैंने अब आपको ऐसा है, अपन है ना स्टूडेंट को भी डायरेक्टली बोलते हैं। जैसे मैं जो क्लासेस में पढ़ाती हूँ, अरे तुम्हारे दिवाली की सफाई निकाली होगी ना मम्मी ने, तो मम्मी को बोलना कि घर से अगर कुछ ऐसा लगता है कि जो अपन बच्चों को डोनेट कर सकते, तो वो लेके आओ। और बच्चे अगर मैंने बच्चे चाहे तो बच्चे वो मांग मांग के लाते मम्मी से कि ये ड्रेस में पहनता नहीं, न दे दे मुझे, ये नहीं। आप नोटबुक के पन्ने फाड़ने के बोले ना, तो बच्चे इतने खुशी खुशी सैटरडे के दिन मेरे पास आते कि मैडम हम भी फाड़ू लगते पेजेस। किताबें भी जो क्लास की अपन रद्दी में बिक देते, जो किताब 100%। आजकल क्या हो गया, सब स्कूलों में कंपल्शन हो जाता है कि किताबें जहां से स्कूल बोली जाती है वहीं से ही लेना है, ये तो अपन क्या करते हैं, वो किताबें कलेक्ट कर लेते हैं। जो वो रद्दी में बेचने वाले क्या आते, रद्दी में 10-20 रुपए आएंगे उसको, वो किताबें अपन जमा कर लेते, और जैसे जैसे अपने को बच्चों के हिसाब से यूज होते चलता है, वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते चलते हैं। जैसे आप नर्सरी प्ले ग्रुप के आप यूज करी हुई पे ABCD इमेजिन नहीं करेंगे। अपने बच्चे इतना गंदा लिखते हैं कि जहाँ 3 लाइन्स 4 लाइन्स बोला है, 2 लाइन्स बोला है, ब्लॉक बोला है, तो वो आजू बाजू जाते हैं। लेकिन वो बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं, वो क्रेयन से भी इतने सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं कि वो सच्ची यूटिलाइजेशन उस समय होता है उसका। और एक बार यूज करने के बाद आधी पन्ने तो 4th क्लास तक कोई भी नोटबुक या कोई भी वर्कबुक के आधे पन्ने खाली होते हैं। और वो इरेजर भी लेके वो इरेज करके वापस करना, डेकोरेट करना, ड्राइंग शीट में भी पीछे से ड्रॉ करना, ये बहुत अच्छे से करते हैं। जो कि अपने बच्चे कैसा है, ये आधी नोटबुक भर गई, अब मैं ये यूज नहीं करूंगा, या ये गिल्ली हो गई। बहुत सी बार क्या होता है, थोड़ा सा पानी डूल गया है, या वाटर कलर यूज करने के चक्कर में, या बड़ा भाई का बड़ी बहन का देख के वो यूज करने के चक्कर में कुछ तो भी खराब कर लेते, थोड़ा सा वो यूज नहीं करते वापस। तो ये भी अगर जमा कर ले तो बहुत प्रॉपरली होता है। तो ये इसमें मेरे जो स्टूडेंट्स है उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, या जो मेरे फ्रेंड सर्कल है जिनको ये पता है, तो वो भी दिवाली के समय स्पेशली मुझे टाइम नहीं रहता है, क्योंकि दिवाली के समय सब सफाई के लिए निकालते हैं। तो 100% कपड़े हो गए, फिर किताबें हो गई, और जून महीने में मैं स्पेशली जिनको पता है मुझे कि भाई जो अपने को इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको स्पेशली फोन कर करके बोलती हूँ कि जो अगर नोटबुक होगी ना तो भेज देना। मैम बहुत ही बढ़िया आपको। यस सर। एक्चुअली देखिए, योर वर्क इज रियली ओवरवेलमिंग। ये इतना बड़ा कार्य है, सहज दिखता है लेकिन कार्य बहुत दिव्य है। चीजें कलेक्ट करना शायद मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन देने के लिए आपके पास जो लोग हैं, क्योंकि लेने वाले ही तैयार नहीं होते आजकल। ये समस्या है। हम लोगों ने इवन स्कूल में जब जॉय ऑफ गिविंग का प्रोग्राम, इतने सारे कपड़े आए थे कि 2 बसेस कपड़े हम लोग लेकर गए, तो कहाँ बांटना है। तो देने वाला तैयार होता है लेकिन लेने वाला तैयार नहीं होता। तो ये कैसा मैनेज करते हो आप? देखिए सर, आप भरे हुए पेट में खाना डालने की कोशिश करेंगे ना, तो खाना कभी नहीं जाएगा। आप ऐसा एरिया सिलेक्ट करना है कि जो एरिया में बार बार नहीं जाने का, वो एरिया में साल में एक ही बार जाने का। अपन महीने में एक बार एक संडे डिसाइड करते, पहले दिन वहां दवंडी कराते गांव से कि कल मंदिर पे जो बच्चों को या जो बड़ों को लेना है, तो कपड़े जो जो अपने एसेसरीज रहेंगे वो बता देने की, वहां जाने का और अपनी गाड़ी में भर के लेके जाने का। किसी को कोई दिखाना नहीं, और उनको क्लियर बोल देना, ये किसी को ऐसा फोटो वोटो में कोई नहीं आएगा उसमें। क्योंकि बहुत से लोगों को शर्म वो भी आती है, क्योंकि आजकल क्या है, फेसबुक पे क्या आ जाएगा या मीडिया पे क्या आ जाएगा, ये कोई भरोसा नहीं।
कि अपन ले रहे हैं, वो चीज की भी शर्म रहती। और वहां जनरली हर गांव में हनुमान मंदिर रहता है, तो हनुमान मंदिर के पीछे ऐसा बोल के डिक्लेयर कर देने, सीधा नीचे एक चटाई डाल देने का, वो चटाई के ऊपर सब डाल देने का, जिसको जो चाहिए उसमें से आप आके लेके जाओ, हम वहां कुछ भी नहीं कर रहे, अपन ने मंदिर के सामने की साइड से आ जाओ। आप लिटरली नोटिस अगर करेंगे ना, तो बराबर साइज के निकाल के वो कपड़े लेते हैं, जिसको जो जरूरत है। कलर्स है, अच्छा पैकेट बना के रखते हैं अपन, कलर्स के भी एक साथ नहीं रखते, सब कलर्स नियर अबाउट सॉर्टिंग करते ना, तो सब कलर्स उसमें आना, ऐसे पैकेट्स बना के रखते। तो भले क्रेयन छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन वो लोगों को लिए उतना ही बहुत है कि काफी शेड आ जाते हैं उसमें, तो छोटे छोटे पाउचेस बनाना। फिर रजिस्टर की नोटबुक, रजिस्टर की बुक्स, नोटबुक की बुक्स ऐसी बना के रखना, ये अलग अलग अपन जब करते तब ये ऐसा ही है कि है ना, ये खेड़े में वापस नहीं जाने का। तो उनको ये मालूम रहता कि ये अब अगले साल ही आने वाले हैं, तो उस दिन नहीं कोई लेने वाला अगर रहा तो वो बोल के रखता है कि मेरे लिए ये लेके रखना वाला। पिछली बार गेम्स आए थे, ब्लॉक गेम्स है, तो उनको एक एक बैग में डाल के रखते हैं, तो वो पूरा गेम का सेट एक हो जाता है। और जब डिस्ट्रीब्यूट करते ना, तब अपन वहां अगर खड़े रहो तो उनको लेने में शर्म आती है। जैसे एक लेडीज चार भी साड़ियां ले ली तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, लेकिन वो वहां लेते नहीं, अपने लोगों जैसा वो करते ही नहीं। वो साथ वाली को लेके आएंगी और घंटे भर बाद कि तिथे साड़ियां चल गया है ना, वो नहीं लेती उसमें से। मैंने ऐसा कोई छीना झपटी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांति से। अगर 2 सेट आ गए तो वो लगेज बाजू वाले को बोलता ये ले मेरे हाथ में 2 आ गए। मैंने प्रैक्टिकली उनको ये समझता है कि इसकी जितनी मेरे को जरूरत है, इसको उतनी इसको भी जरूरत है वो चीज की। और ठंडी पे जब अपन गोदड़ी वगैरह देने का ये प्रोग्राम रखते, तो स्पेशली अपन जो अपनी डबल बेड की चादर है, सिंगल बेड की चादर है, सोलापुरी यूज करी हुई चादरें है, इनको जब अपन यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद में ये लोगों को जब जैसे हाईवेज पे मिलते हैं अपने को खेड़े, कि जहाँ ठंडी ज्यादा रहती है, खेड़े वगैरह में कैसा रहता है कि वो आग लगा लेते कर लेते, तो उनको हो जाता है मैनेज। लेकिन जो हाईवे पे रहते या जो चल के जिनका पैदल चलने का काम है, या रात को खेत में से आते मजदूर लोग हैं, जैसे 6 बजे अगर निकलते हैं खेत में से, तो घर में आने को 7:30 तक बच जाती है उनको। तो ये लोगों को ऐसे समय में अपन उस समय जाके देते कि अब दिख रहा है कि इसके आंग पे ये नहीं है, तो वो उसको दे दो। मैंने एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपन भी, क्योंकि क्या है, एक साथ बहुत दिख गया ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ बहुत है इनके पास, ये कर लो। तो ये एक एक गांव में जाके बराबर अगर डिस्ट्रीब्यूट करे, तो अगली बार बोलते हैं की तुम्ही यावेळेस पेन्सिल नाही आणल्या छोट्या, यावेळेस तुम्ही रिफिलचे पेन नाही आणले मॅडम, म्हणजे वो अपने को बोलते। वहां किसी को कोई नाम नहीं मालूम कि ये कौन सी मैडम है, क्या रे, सिर्फ इनको मालूम है कि यहाँ आने वाला है कोई, तो भी दे के जाने वाला है। चश्मे की फ्रेम्स सर, चश्मे की फ्रेम्स जो अपनी पुरानी रहती 4-4, 5-5, 100% किसी के दिवाली के सफाई में तो निकलती ही है। करेक्ट। तो जो खेड़े में एजेड लोग रहते ना, तो उनको चश्मे की फ्रेम पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि 200-250 के नीचे नहीं आती कोई भी फ्रेम। तो चश्मे की फ्रेम मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि 27-28 चश्मे की फ्रेम हो गई थी अपने पास। तो अपन ने वो वहां जाने के लिए बोला, तो मैंने मॅडम तुम्ही आणल्या तसही, पण यार चष्मे लावायचे कसे मग आता? बोली यार ये तो अपन नहीं कर सकते। फिर अपन ने आए सोचा कि भाई अगली बार अपन आप करेंगे ना, तो उनको कैंप के थ्रू करवाएंगे, तो कोई ना कोई डॉक्टर को साथ में लेके अपन उनका आई चेकअप भी करा लेंगे, और वो हिसाब से उनको वही चश्मे फ्रेम में चश्मे के नंबर्स डाल के दे देंगे। तो अगली बार हमने ऐसा सोचा कि अब ये बार जब कोरोना हो जाएगा, तब आंखें का चेकअप का कैंप करके ऐसा करेंगे, यूटिलाइजेशन में फ्रेम भी यूटिलाइज हो जाएगी और उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मैडम जब आप मैम जब आप जरूरतमंद लोगों को आप जब मदद करते हैं, मतलब जब एज हेल्पिंग हैंड जब आप आगे हाथ बढ़ाती हैं मदद करने के लिए, तो उनके चेहरे पर क्या भाव होता है, और वो मतलब आपके मन में उसके बारे में क्या फीलिंग्स आते हैं?
मैडम एक्चुअली ऐसा रहता है, जो उनके चेहरे पे खुशी रहती है ना, कि वो अपने बच्चों को जब अपन ने नई टू व्हीलर भी लाके दे दी ना, नई टू व्हीलर, तो भी उनके चेहरे पे उतनी खुशी नहीं रहती कि जो एक कलर बॉक्स देख के या पेन पेंसिल देख के जो उसके चेहरे पे, या फिर नोटबुक मिल जाने की जो खुशी रहती कि इतने दिनों से लिखा नहीं है, नोटबुक लिखने की खुशी, या फिर किताबें मिलने की खुशी। चप्पल, अपने बच्चे चप्पल सिल के नहीं यूज करते, तो वो सिल के चप्पलें आप डोनेट कर दो, या फिर फटी हुई डोनेट कर दो, हम सिल लेंगे। मेरा तो कहना ये रहता है कि भाई जो है जैसे फॉर्म में है वो दे दो, हम उसको देख लेंगे कैसा करना है। एंड 100% उसमें से हम लोग तो कुछ यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, जो भी करना है सिल के या फिर नीचे पैचिंग करा के या उसको सोल बिठा के कैसे भी करके अपन सामने वाले को फॉरवर्ड कर देंगे। और सबसे मेन जो है एक सेटिस्फेक्शन रहता है, और वो बच्चों को ये रहता है कि वो चीज का यूटिलाइजेशन कर दो, है ना। अपने बच्चों को वहां साथ में लेके जाने को ना, अपने बच्चे अगर वहां जाके समझे कि अपन ने ये जो कल कलर फेंके थे, ये बच्चे इतने सेटिस्फेक्शन से यूज करके, अपना बच्चा भी 100% कहीं ना कहीं उसमें चेंज जरूर आएगा। But this मैम task is not possible without a team, right? The job is so great because when things come in the raw matter, then to mend it, correct it, and after that to hand over it, it's not a simple task. So how do you manage all the things? सर सबसे बड़ा हैंड मेरे फैमिली मेंबर्स है, Okay, और सेकंड जो मेरे साथ जो कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं, वो स्पेशली संडे के दिन समय देते हैं, अच्छा, और उनके पेरेंट्स भी आते हैं कि वो सॉर्ट आउट करने के, मैडम आना है सॉर्ट आउट करने के लिए, मैडम पैकिंग करने के लिए आना है, पूछते हो। जिनको जिनको पता है वो 100% आते हैं कि मैडम पैकिंग को कब आना है, अगले संडे जाना है या समय है। और गाड़ी के लिए भी अपन बोलते हैं कि भाई गाड़ी के भी भाड़े के पैसे तो ले ले, तो एटलीस्ट पेट्रोल के डीजल की जो भी लगते हैं तुझे, नहीं मैडम आप पैसे रहने दीजिए, आप उतना मेरे तरफ से डोनेशन समझिए बोले आप। क्योंकि बाइंडिंग करने के लिए, एक बुक बाइंडिंग करने के लिए 10 रुपए लगते हैं। so how do you manage all those expenses? अभी तक तो सर ऐसा है कि फैमिली से ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को इसमें अपन ज्यादा लोगों को अगर इन्वॉल्व करना है तो वो सोशल मीडिया पे आना कहीं ना कहीं शुरू हो जाए। Correct, correct. और जहां सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया, वो सामने वाले फोटो में आना करना, उससे वो कहीं ना कहीं उनको शर्म महसूस होती है वो चीज की, कि जैसा अब ज्यादा लोग भी गए तो फिर वहां सेल्फी लेना करना। हम लोग तो मोबाइल में भी कभी आज तक के फोटो नहीं लिए कि कौन ले रहा है कौन कर रहा है, कुछ भी नहीं। लो आप, आपको जो चाहिए उसमें से लो। Okay. मैंने आपके फैमिली मेंबर्स का इसमें जैसे okay, may I know who are there the supporting members of your family basically? स्पेशली बोलना चाहूंगी कि इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, और मेरी जॉइंट फैमिली है, अच्छा, तो ससुर जी का, सासू जी का, इनका सबका है। बेटा कभी ऐसा नहीं बोलता है कि माँ मेरी बहुत पुराने ख्याल की है? नहीं, वो ये हमारी खासियत है कि उसने है ना बचपन से देखा है सर ये। अच्छा, तो जब वो पेजेस बच जाते हैं ना, तो एग्जाम होते से ही वो नोटबुक के जैसे अगले पेपर की तैयारी के पहले वो बोलता है कि मम्मी इसमें 40 पेजेस बच गए। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। मैंने उसको ये समझता कि अब ये 40 पेजेस की नोटबुक बन जाती है इसमें। यस, और वो छोटी छोटी पेंसिल जमा होती है, तो मम्मी ये बार छोटी मैं ही यूज करता हूँ, बड़ी उन लोगों को देना। गुड। वो मैंने ऐसा कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट या ऐसा कुछ नहीं, इन एन एवरेज एकदम जनरल पर्सन। यस, तो उसको क्या है कि हर बार उन्होंने जुना नहीं यूज करना, तो ये बार आप नया मत लो बोले, पर जो मेरे लिए लाया हुआ है वो उनको दे दो बोले। मींस रियल लाइफ स्किल्स आर गेटिंग परकोलेटेड। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस, और ये बोलने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप साथ में करते चलेंगे ना, तो अपने आप आते चलता है। करेक्ट, बिल्कुल। और ये जैसे ट्यूशन क्लासेस में भी जो बच्चे आते ना, तब वो
बोलते चलते कि मैडम ये इरेजर है ना, अपन कट करके अगर यूज करें तो हम दोनों यूज कर लेंगे, तो ये नया वाला आप डोनेशन बॉक्स में डाल दो, ये आधा आधा हम दोनों यूज कर लेंगे कि ये बड़ा है बोले। मैंने ये बच्चों को अब समझने लग गया कि ऐसा करे तो ऐसा होता है, और ये थोड़ा थोड़ा अगर उनको साथ में ले जाके आप दिखाओ कहीं तो ये समझ में आता है। और अपन क्या करते हैं, शनिवार के दिन शनि मंदिर में खाना देना, वो ऑलरेडी इतने फुलफिल हुए हुए रहते, क्या खाना देना है उनको। करेक्ट है, करेक्ट। और क्या पैसे के फॉर्म में अगर तुम कुछ हेल्प कर रहे तो उसको पैसे के फॉर्म में हेल्प करके कुछ भी फायदा नहीं है ना, वो उस पैसे से क्या रिसाइकलिंग, दिस यूटिलाइजेशन। इज योर वेरी गुड थिंग दैट कि रिसाइकलिंग भी हो रहा है, बिल्कुल एनवायरमेंटल सपोर्ट भी हो रहा है, और सेकंड एक मैसेज भी जा रहा है कि जो भी यूज कर रहा है उसको सपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक जो दाता है उसको भी एक मैसेज जा रहा है कि काफी अच्छे से उस चीज का रीयूटिलाइजेशन हो रहा है। रियली इट इज वंडरफुल, दिस योर थॉट बिहाइंड दैट इज एक्सीलेंट, स्प्लेंडिड, थैंक यू रियली ग्रेट। और कैसे है सर कि अपन जब तक करेंगे नहीं, इनिशियलाइज जरूर अपने को ही करना पड़ेगा, और एक घर से ही शुरुआत करना हमेशा, क्योंकि दिवाली का टाइम तो मैं बोलती ना, ये सबसे, मैं हमेशा बोलती लोग दिवाली की सफाई करते हैं, मैं दिवाली को यूटिलाइज करती, क्योंकि दिवाली की जो 15 दिन की छुट्टी है मेरा सिर्फ सबके घर से जमा करना, उसको सॉर्ट आउट करना, इसमें ही जाता, और दिवाली के दिन कहीं जाके डिस्ट्रीब्यूट करने में तो वो मजा ही कुछ और है फिर, क्योंकि रियल लाइफ में दिवाली बन जाती है। Yes, charity begins at home, ma'am. Really, it's true, and we can see it from you. Shakespeare also says that some people are born great, but some achieve greatness. So, ma'am, you achieved that, and you're really great, and your work is really great. Thank you for sparing your valuable time with us, and really, it's really noteworthy and praiseworthy. It's really a very wonderful inspiration for all of us and for the whole world also. Thank you, ma'am. Thank you once again. Dear viewers, meet you once again tomorrow with one more inspiration. Till then, see you. Have a nice day. That's Thank you, madam.